हाँ, हम लोग क्लास क्लास में कहाँ पे थे? ये हो गया। हाँ, इनके बारे में आप लोग सब समझ गए ना? नहीं समझे? इनको कहते हैं भूमाफिया। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जमीनों को जमीनों को हड़पना। हाँ, आपने सही बताया। ये जो है वो फंसा के आपको आपकी जमीनों को हड़पना चाहती है। तो इसलिए बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ डॉग्स एंड लैंड माफिया। ओके, सावधान रहिए। चलिए, कुत्तों से और भूमाफियाओं से हमेशा सावधान रहिए। हाँ, मैंने कहा था आपसे लास्ट क्लास में कि हम लोग आप लोगों से के बारे में कुछ यहाँ आके आपको बोलना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अपना। तो एक एक करके जो है वो आप लोग आइए, आप आइए पहले हैं। हाँ, आप स्टार्टिंग कीजिए। नहीं, आप इतने यार नहीं, आइए आइए, चलिए, बुरी बात है। अच्छा चलो, तुम लोगों की हेजिटेशन दूर करने के लिए सबसे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? हाँ यार बेटा, देखिए, माई नेम इज आमिर हसन, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम फतेहपुर, ठीक है। माई फादर ही वॉज एन लॉयर and my mother was a professor, head of the department, so in Kanpur University, okay. And my grandfather was also a very prestigious, famous lawyer of Fatehpur. And regarding my schooling, I have done my schooling and my education from Kanpur and Lucknow. I have completed my LLB, I have completed my MBA, and I am a UGC NET qualified. I have been into academics for the last maybe 10 years, and professionally, like, I have been working for different organizations and companies. I have been working in IT and IT sector. Then for a short while I also started my own my startup. Actually, I went into business. I started my IT company, and then I have been to different foreign countries also, Middle East and Gulf, and I've worked with various international organizations. So regarding my hobbies and interests, I like to play and watch cricket now. Actually, I don't play. Then I love to listen music. I love reading. So reading, I read anything which comes to my way, like fiction, non-fiction, everything is there. Then in music, I am very fond of Kishore Kumar, Hindi music, English music, metal is okay. So I seldom listen to English music. So this is all about myself. Okay. So I have given my brief introduction आपको दे दिया मैंने। अब बारी आप लोगों की है, एक एक करके आप लोग आइए। आइए, नहीं बुरी बात, आइए। इतना मैंने बोल दिया, इतना मैंने कह दिया, तो अब आप जी, हाँ, अरे आइए यार, बोले कैसे नहीं, कमान, आओ अच्छा, आओ चलो, नहीं आइए, आप आइए, हाँ बताओ, कमान, हमें यार कैसे तुम जी, अरे तुम आओ तो यार बेटा, आओ, हैं पहले, अच्छा तुम आ जाओ यार, अच्छा तुम आ जाओ, गर्ल के चक्कर में जाओ, बॉयज फर्स्ट, बॉय शुड हैव, अच्छा पाएंगे, चलो तुम आओ यार, तुम आइए, आइए,
ये देखो, ये सबसे अच्छी लगती है। हाँ, शाबाश। हाँ। Hello everyone, first of all thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I am Shiva. I have completed my schooling from Maharshi Vidyalaya. Recently I have joined the institution or college with my graduation. There are four members in my family. My father is a businessman and my mother is a housewife and the sister is actually younger than me. My strengths are I am self-motivated and hardworking, and my short-term goal is to achieve good marks in the upcoming exam, and my long-term goal is to get good position in law firms. And my hobbies are all I like to riding or reading my free times. That's all about me. Thank you. Right. आओ। आओ सेटिंग नहीं, अरे आइए तुम आओ, कम। हाँ आइए। I am here to complete my graduation and complete my schooling from high school to school. And I have four members in my family. My father is a self-employed who owns his own workshop, and my mother is a homemaker. My brother is studying in class 10, and I pursue my career in CA. And my hobbies are reading books, listening music, painting, drawing, etc. वेरी। आइए, और कौन आ रहा है? आप आइए, कम। हाँ। Hello everyone, my name is Rathupar. I am here to give you my introduction, and my name is Rathupar, and I completed my school from the second school, and I have many hobbies like football, cricket, etc. And I have a music taste, and I just want to become a investor, or even investment stock investor, and many more hobbies, and I would like to start a personal clothing brand. आइए आइए, चलिए आइए, जल्दी आइए भाई, बोलिए, आइए, बोलेंगे कैसे नहीं, चलिए। अरे आओ यार, इतना इतना तो जो है वो लड़कियां जो है अपनी शादी में नहीं शर्माती हैं। आओ तुम इधर आओ, अरे आइए, आप इधर आइए, चलिए। अरे बेटा जल्दी आओ, वेस्ट नहीं करो, टाइम नहीं वेस्ट करो, आओ। हाँ आइए, तुम आओ बेटा जी। नहीं बोलो कैसे नहीं यार, हर लड़का बोल रहा, आइए ऐसा। सर नहीं बोल पाऊंगा सर। अरे चलो आइए। अरे सर बोलूँ क्या? अच्छा चलिए, जो बोल आप कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे। नहीं, कॉन्फिडेंस आप लाइन जब बोलेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आए, इसीलिए तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन किस लिए हो रही है? आइए चलिए, खड़े हुए पर, खड़े हुए पर। हाँ, क्या बोला सर? समझ में नहीं आया। आपका नाम बोलिए, आपके पेरेंट्स का नाम बोलिए, आप किस आपकी स्कूलिंग के बारे में बोलिए, आप की हॉबीज के बारे में बोलिए, बस इतना बोल दिया जाइए। बोलिए ऐसे, उधर उधर बच्चों को देखिए, भाई आर लुकिंग एट मी। नहीं बोलिए कैसे नहीं यार, ये क्या बात हुई कि नहीं बोल पाएंगे? बोलिए आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, कैसे बोलिए? बोलिए। निकल गई। नहीं, आज ही बोलना है, यू हैव टू स्पीक टुडे। बोलिए, और उधर उधर चेहरा कीजिए। समय नहीं बोला सर। नहीं तो कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए ना, इसलिए आइए तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ मैं, ट्राई कर लेगा। आप उधर चेहरा कीजिए, बोलिए। चलिए कॉन्फिडेंस नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए, आप अपना जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलिए आप। ट्राई नहीं किया सर, नहीं बोल पाऊंगा। अरे तो बोलो ना यार, जब तुम ऐसे तुम शर्मा रहे हो वैसे ही बोलिए। तुमसे अच्छी तो यार ये लड़कियां देखो सब बोल के चली गई, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं है सर। देखो बोलो ना, जब आए जब कॉन्फिडेंस, जब कमाल की बात है। तुम आओ बेटा, ये बच्चे आओ, तुम इधर आओ, आओ सर इधर आओ, आइए बेटा, आप आइए, तुम आओ बेटा, आओ, हाँ आओ,
Good afternoon, everyone. Myself, Gaurav Suri. I am a student from St. Mary's Secondary School. In my family, there are six members. My father is a self-employed businessman. My mother is a housekeeper, and I am grandmother and grandfather. And I have one younger sister. She is in fifth class. And I have hobbies like reading and listening to music. ठीक, थैंक यू। हाँ Good morning, everyone. My name is Neha. There is I remember my family. My father is a student. My father is a businessman. My mother is housemaker. And my qualification is my complete finance person from the Florence University. चलिए, और कोई ट्राई करना चाहेगा आप? चलिए ठीक। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ बुलाने का, भाई आप बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास कर रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेशन यहाँ नहीं सीख के जाएंगे तो क्या मतलब? यू शुड लर्न कम्युनिकेशन ना। और कम्युनिकेशन आपको तभी आएगा जब आप बोलेंगे, जब आपकी हेजिटेशन दूर होगी, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। है बात कि नहीं? August 12th। समझ आया? You got it? On 12th August, we'll have a group discussion, and the topic would be online education versus offline education. मतलब क्लासरूम टीचिंग वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है? कुछ लोगों को जो है वो ऑनलाइन प्रिपेयर करके आइएगा, कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन के फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग जो है वो क्लासरूम के फेवर में बोलेंगे। ठीक है? So I'll divide you people into two halves. 50% of the students would speak in favor of, 50% against. All right? चलिए, 12 को है ये। बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास में अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगा तो फिर किस क्लास में आएगा? क्यों भाई, किताब में जो लिखा है वो तो बता ही देंगे यार हम, उससे थोड़ी ना तुम्हें कम्युनिकेशन आ जाएगी। तो ये चैप्टर हमारा हो गया था ना, 4th चैप्टर। वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, रोल effect and advantages of technology in business। ठीक, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, क्या इफेक्ट है, क्या एडवांटेज है,
बिजनेस के ऊपर आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो, अच्छा बुक्स सबके पास आ गई? बुक्स मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है? ट्राई नहीं किया? ट्राई करो जाके जी, वो जो बुक स्टोर बताया था ना, वहाँ ट्राई करो, वहाँ मिल जाएगी, है ना वहाँ पे बुक्स? तो ये तो ऑनलाइन मंगाया नहीं, जब ऑफलाइन मिल जाएगी तो उनको शिपिंग चार्ज देने समझ जाएंगे, ये जो 40-50 रुपये वो उसकी कॉस्ट ले लेता है ना। चलिए, तो देखो भाई, टेक्नोलॉजी जो है उसने कैसे हमारे कम्युनिकेशन पे क्या इम्पैक्ट डाला है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले किसी को अगर जो है वो कुछ भेजना होता था, कुछ संदेशा या कुछ इस तरह का मैसेज, तो बहुत पुराने एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हाँ बहुत पुराने टाइम में, वंस अपॉन अ टाइम, अरे वो लिखा जाता था यार, वो दवात होती थी, वो इंक से उसको लिख के, फिर जो था वो कोई एक आदमी जो था वो दस्ती वो लिफाफा लेके जाता था और वो देता था जाके, है ना, वो लेटर जो है मिलते थे। अब ऐसे तो फिल्में में तो जो है वो दिखाते हैं कि यार कबूतर भी लेके जा रहा है, चिड़िया भी लेके जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो लोग लेके जाते थे, है ना। तो वो एक जो तुम्हारा लेटर है, अब वो जितने दिन में पहुंचेगा वहां पर, उस उतने दिन बाद जो है वो लेटर तुमको मिल पाएगा, है ना। है बात कि नहीं, कि अगर यहाँ से मान लो कि तुमको कोई लेटर जो है वो कानपुर भेजना है, तो आज तो 2 घंटे में 1 घंटे में आदमी पहुंच जाता है कानपुर, लेकिन अगर मतलब बाय बस या जैसे भी, लेकिन पहले तो जो था वो एटलीस्ट 3-4 घंटे की तो खाली रोड की जर्नी होती थी, वो भी कहीं ब्रेक नहीं लिया नहीं किया। तो कम्युनिकेशन में कैसा जो है वो एडवांसमेंट किया। फिर उसके बाद जो है वो तुम्हारा लेटर का सिस्टम चला, इंडियन पोस्ट ऑफिस बना, है ना। ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, अगर उन्होंने कुछ जो है वो देश की व्यवस्था को बर्बाद किया तो कुछ अच्छा भी काम किया, कुछ रिफॉर्म भी लाए, है ना। उनमें एक रिफॉर्म जो था तुम्हारा वो इंडियन पोस्ट का था, वो किया तो उन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए कि भाई उनको जो है वो उनके जो बेसिकली जो ऑफिसर्स होते थे या उनके जो लोग होते थे तो उन तक जो है वो कम्युनिकेशन पहुंचे, इसलिए उन्होंने वो सिस्टम शुरू किया। बट एक्चुअली में इट बेनिफिटेड द इंडियंस आल्सो, है कि नहीं। तो उन्होंने टेलीग्राफ शायद 1884 या इस तरह से कुछ कभी जो है वो स्टार्टिंग किया। तो जब टेलीग्राफ का जो है वो स्टार्टिंग हुई तो उसमें कोड वर्ड्स में जो थे वो मैसेज भेजे जाते थे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, है ना। और वो नॉर्मली जो था वो मतलब या तो बहुत कोई अगर बहुत खुशी की बात होती थी तब टेलीग्राम आता था, और या फिर जो है बहुत कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी की डेथ हो गई या कुछ इस तरह का। अब तो टेलीग्राम बंद हो गया, लेकिन ये भी उसी तरह से भेजा जाता था, है ना। तो फिर उसके बाद जो है लेटर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, कई दिनों तक लेटर चलते रहे। फिर उसके बाद जो है वो एकदम से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हुई 1990s में, और फिर जो है वो तुम्हारे शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम चले। उसमें सबसे पहले तुम्हारा आया पेजर। पेजर अगर किसी ने कभी देखा होगा तो एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता था, और उसमें जो था वो टाइप करके बड़े महंगी कॉल उसमें आती थी, बहुत महंगा मैसेज आता था, लेकिन वो उससे भेजा जाता था, है ना, वो मैसेज किया जाता था। और उसके बाद फिर मोबाइल जो है उसी टाइम में इंट्रोड्यूस हुए, बड़े लंबे लंबे सेट आते थे और बहुत महंगी उनकी कॉस्ट होती थी, और उनके चार्जेस भी बहुत हाई होते थे। तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत से चेंजेस आए। फिर ईमेल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। हालांकि ईमेल्स का इंट्रोडक्शन जो है ऑलमोस्ट 1950 में हो गया था, लेकिन इंडिया में आते आते बहुत टाइम लगा उस टेक्नोलॉजी को। और जबकि जो ईमेल का हॉटमेल का जो स्टार्टिंग किया था वो एक इंडियन ही था, सबीर भाटिया, उसने स्टार्ट किया था हॉटमेल को। लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी आते आते काफ़ी टाइम लगा। अब जो है वो ईमेल का सिस्टम आ गया है, ईमेल से आप जो है वो मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो
ये तो नहीं कह सकते कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंस्टेंट मैसेजिंग तो तुम्हारे जो है वो एसएमएस या जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं उनसे होती है, लेकिन ईमेल से भी मैसेज तो इंस्टेंट सेंड हो जाता है, बट एक्चुअली में रिसीवर जो है वो अगर जब तक वो ईमेल अपना खोलेगा नहीं तब तक वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल्स के बारे में। व्हाट इज ईमेल? बताओ, ईमेल क्या होता है? बताओ। ईमेल के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं? जी, हाँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको सेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के यूज के साथ, है ना? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसको रख कर दें। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बताइए। मैसेज तो सेंड करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सेंड होती है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। प्रोवाइडेड यू यूज इंटरनेट। इंटरनेट अगर आपके पास है तो उसमें कोई और ज़्यादा आपको एक्सपेंस की कोई ज़रूरत नहीं है ना? फ्री है। इंटरनेट के चार्जेस आजकल बहुत मिनिमल हो गए। कितना मोबाइल में आप डेटा डलाते हैं, कितने का डलाते हैं? 350 का। ये कितना जीबी है? 2 GB। हाँ, तो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो लोग कम यूज़ करते हैं शायद उनका और सस्ता पड़ता होगा। या वाईफाई अगर घर में आप लगाते हैं तो उसमें सब सारे यूजर्स आपके यूज हो जाते हैं। तो बट इट इज़ यानी इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है। ठीक है, अगला क्या है? क्विक सर्विस है। क्विक सर्विस की नहीं है कि आपने इधर जो ईमेल टाइप किया उधर पहुंच गया, सेंड किया आपने पहुंच गया, है ना? सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। कभी किसी ने अगर ईमेल कंपोज किया हो याहू पे या जीमेल पे या और भी रेडिफ मेल है या हॉटमेल है, हाँ, पेपरलेस भी ऑफकोर्स पेपरलेस जी, मास सेंडिंग भी है। ठीक है, बताते हैं अभी सब कुछ। यूज करना इसको बहुत आसान है। एक अगर हम देखें, स्क्रीन अगर खुलती है यहाँ पे आप ऑडियो को कंपोज कर लेते हैं और यहाँ कहीं जो है वो सेंड का ऑप्शन होता है। यहाँ कहीं कंपोज का होता है।
देखिए ऐसे ही कुछ मैंने बना दिया यार, ईमेल मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही बॉक्स होता है ना ईमेल का, खोलो तो ये इनबॉक्स होता है, यहाँ पे कंपोज का जो है वो एक बटन होता है, यहाँ ड्राफ्ट होते हैं मैसेजेस जो आप एक्चुअली में टाइप कर देते हैं लेकिन भेजते नहीं तो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे एक सेंड का भी होता है, जो मैसेज आपने भेज दिए उनका भी एक ऑप्शन होता है, कौन कौन से मैसेज आपने भेजे हैं, ठीक है। ये कुछ फोल्डर आप बना लेते हैं अपने ईमेल में, जहाँ डॉक्यूमेंट्स आप स्टोर कर लेते हैं। बाकी जब आप कंपोज पे बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये पेज खुलता है जिसमें लिखा रहता है टू, जिसको आप भेज रहे हैं। फिर ये कार्बन कॉपी, हाँ सीसी, जैसे आप लेटर में भेजते हैं, बाकी टाइम जब लेटर आप भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, आप किसी को भेजते हैं कि जो रिस्पॉन्ड करेगा, और सीसी किसको भेजते हैं, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, तो कार्बन कॉपी उनको भेज देते हैं कि जो एक्चुअली में आप उनको लूप में रखना चाहते हैं, बट यू डोंट वांट टू सेंड द ईमेल्स टू देम एक्चुअली। जैसे मान लो कि तुम एक एम्प्लॉय हो, है ना, लाइक यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है related to your manager or related to your job or anything else. So actually you want to send the message to your manager, but you also want that I should also inform or intimate my general manager या जो बॉस हैं आपके, नेक्स्ट जो बॉस हैं मैनेजर से ऊपर वाले, उनको भी आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि वो आपको रिस्पॉन्ड करें, लेकिन आप उनको इन्फॉर्म जरूर करना चाहते हैं, तो आप उनको जो है वो एक कार्बन कॉपी भेज देते हैं, यहाँ पे सीसी में उनको भेज देते हैं, और एक्चुअल में जो है वो आपने भेजा है मैनेजर को, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये ईमेल की ये सब एटिकेट होती है। और एक होता है बीसीसी। कभी किसी ने ईमेल यूज किया है? ईमेल किसी ने भेजा नहीं है किसी को, अपने दोस्त को, अपने कहीं जॉब के लिए या कहीं किसी, तुम लोगों ने किसी ने नहीं यूज किया ईमेल? ईमेल किया ये? अब ये जैसे बीसीसी होता है, बीसीसी का क्या मतलब होता है? ईमेल में देखा होगा कभी, अगर देखोगे कंपोज अपने सब वो नेट वो है, मोबाइल फोन लाओ, इंटरनेट चल रहा है, निकालिए खोलिए, अभी प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। किसी भी मेल का ऐप डाउनलोडेड है, याहू का या हॉटमेल का या जीमेल का या किसी का भी? अगर नहीं है तो एक याहू मेल ऐसी खोल लो, www.yahoo-mail.com, जी जीमेल, हाँ तो जीमेल खोल लीजिए। ये कौन सा, ये कहाँ, ये कौन सा है तुमने खोला है? एक सेकेंड यार, वेट 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 वेट, वो खोलो अपना होम पेज खोलो, वो खोला ना होम पेज, होम पेज खोलो, ये खोला, नेट की वजह से चलता है ये क्रोम। अच्छा तुम्हारा साइन नहीं है याहू में, तुमने वो नहीं है क्या, साइन इन करो। खोला किसी ने? है किसी के पास? दिखाओ, कंपोज में जाओ, हाँ देखो देखो, टू आया, ये सीसी आया, ये बीसीसी आया, ये सब्जेक्ट आया, ये कंपोज मेल, सबको दिखा दो। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया,
ठीक है ना? तुम लोग जीमेल खोल के दिखाओ, मैं बता दूंगा। जीमेल खोलो हैं? ठीक है। तो अच्छा, बीसीसी का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वेरी गुड। इसका क्या मतलब हुआ? ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या मतलब हुआ? लाइक एक्चुअली तुम किसी को ईमेल भेजना तो चाह रहे हो, बट यू डोंट वांट दिस पर्सन टू सी टू whom यू आर सेंडिंग। कॉन्फिडेंशियल है कि आप मान लीजिए कि कंपनी के ओनर को आपने जो है ब्लाइंड कॉपी कर दिया, कि आप ये तो चाहते हैं कि आपका मैसेज जो है वो उन तक पहुंच जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपका जो इमीडिएट बॉस है या जो मैनेजर है आपका, वो ये चीज़ जो है वो देखे कि मैंने जो है वो मैं अपने बॉस को दी या आपके जो ओनर है उनको मैंने मैसेज कर दिया। ठीक है, ये सब ईमेल के एटिकेट्स होते हैं। फिर यहाँ आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लाइन में आप सब्जेक्ट डालते हैं कि जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में आप मेल कर रहे हैं वो आप डालते हैं, है ना? और उसके बाद फिर आप बॉडी पूरी होती है। उसके बाद एक बटन होता है सेंड का, वो आपने सेंड का बटन जो है क्लिक कर दिया तो आपका मैसेज जो है वो इंस्टेंटली पहुंच गया। ठीक है, बस आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए? आपने एक अकाउंट खोलना चाहिए, चाहे वो याहू पे हो या जीमेल पे हो या जिससे भी हो, gmail.com। उस पर खोल लिया आपने, कंपोज कर लिया मैसेज, आपने अकाउंट सेटअप कर लिया। उसके बाद आप जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, है ना? वो ईमेल एड्रेस आपका ऐड करके होता है। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस amirhassan_1@yahoo.co.in, है ना? इसी तरह से जो है वो आपका मेरा जीमेल पे भी खुला हुआ है, amirhassan11@gmail.com। बात हो गया? तो ये ऐड होना जरूरी है। और हमेशा जो आपका जो एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस, वो सब स्मॉल कैप्स में होता है, कभी जो है वो अपर केस में नहीं होता। लोअर केस अपर केस समझते हो ना? एवरीवन इज अवेयर ऑफ लोअर केस एंड अपर केस। कंप्यूटर में कभी नहीं पढ़ेंगे आप लोग? कंप्यूटर में पढ़ा है? एक लोअर कैप्स होता है, जहां पे कीबोर्ड में एक लिखा रहता है कैप्स ऑन। कभी किसी ने देखा है कीबोर्ड पे कैप्स ऑन लिखा हुआ? अरे यार, तुम लोग मोबाइल में भी टाइप करते हो, उसमें भी आता है यार। कैप्स ऑन करके तो नहीं आता है, लेकिन उसमें वो बना रहता है कुछ एरो या कुछ उस तरह का, कि जिससे आप कर देते हो क्लिक तो वो फिर कैपिटल में आने लगता है ना। उसको कहते हैं अपर केस, उसको बोलते हैं अपर केस। और इसको बोलते हैं लोअर केस। तो हमेशा जो है वो लोअर केस में ही आता है, ईमेल आईडी हमेशा लोअर केस में आती है। ठीक है, ईमेल को एक्सेस करने के लिए आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा जो है वो किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। यू ओनली नीड इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी जाएंगे, वहां आप जो है वो इंटरनेट अपना खोल लेंगे तो आपका ईमेल जो है वो खुल जाएगा, है ना? इसलिए ये है कि ये इजी टू एक्सेस है। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि पेपरलेस है, बिल्कुल इसमें आपको कोई पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। तो पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस वजह से ये इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, क्योंकि पेपर जो है वो हमारे एनवायरमेंट को, एक्चुअली पेपर हमारा कहाँ से? पेपर हमारा प्लांट ट्री से ही बनता है ना। जो भी आपके जो ट्री होते हैं उनको हम काटते हैं तो पेपर मिलता है। तो आपको वो एक्चुअली में वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और पेपरलेस भी है। ठीक है,
पेपरलेस। फिर जैसे मैंने कहा मास मेलिंग, मास मेलिंग एक साथ आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या होता है, जैसे मैंने ये किया amirhasan_world@yahoo.co.in, यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। आपके उसमें मोबाइल में भी रहता है कॉमा का एक ऑप्शन और कीबोर्ड में भी रहता है। कीबोर्ड और मोबाइल का कीबोर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन होते हैं। आपने कॉमा लगा दिया, उसके बाद आपने ये एड्रेस टाइप कर दिया, फिर आपने कॉमा लगा दिया, फिर एड्रेस टाइप कर दिया, तो n नंबर ऑफ आप सेंडर्स को वो मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और उसके अलावा ये कि आपके ईमेल हमेशा आपके पास जो है वो स्टोर्ड रहते हैं, यानी कि आपको जो है वो कभी भी अगर जरूरत है पुराने अपने आर्काइव्स को देखने की, तो आप आर्काइव्स में जो है उठा के देख लेंगे, या पुराने अपने जो है वो उसको सर्च कर लेंगे, या पुराने अपने सेंड आइटम को देख लेंगे, तो वो मेल्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपने मेल्स किसी को भेजे हुए तो आप सेंड आइटम में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या अगर आपके पास कहीं से ईमेल आया हुआ है तो वो आपका जो है वो किसी न किसी फोल्डर जो है वो आर्काइव्स में पड़ा होगा, आप उसको सर्च करेंगे, टाइप करेंगे तो वो ईमेल आपका खुल जाएगा। तो मतलब इट कैन बी यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट स्टोरेज ऑल्सो, क्योंकि क्या नाम है उसमें याहू में उसमें काफ़ी स्पेस होती है, तो आपका ईमेल जो है वो इजीली आपके स्टोर अप हो जाता है। ठीक है, बात समझ गई? इसमें इतना जो बताया, इसमें कोई डाउट किसी को? क्या टाइम हो गया क्या है क्लास का? हो गया, चलिए फिर आज एडवांटेज तक रख लें, कल